Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn about the biology and the branches of biology. So, what is biology? The study of life is called biology. This is the most simplest definition of biology. It can also be defined as the word biology is composed of two Greek words. The word bios meaning life and logos meaning to study and knowledge. So the simplest way to define the biology is that the study of life is called biology. Instructor is Muhammad Zishan Prab. Now have a look on the branches of biology. So the first branch we will discuss is the morphology, anatomy, histology. Number 4th branch of biology is cytology. The 5th branch is physiology. 6th one is genetics. The 7th one is ecology. 8th branch is taxonomy. 9th branch is paleontology. And the 10th branch is embryology. So we are going to discuss our first branch, which is morphology. What is morphology? The study of external structural characteristics of plants and animals. The branch of biology that morphology also deals with the characteristics of microorganisms. पहली बात हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म की टर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट रेफर्स टू द लिविंग, हर वो जानदार जिसकी बॉडी के अंदर सेल, डीएनए या आरएनए मौजूद है वो ऑर्गेनिज्म. एंड दैट ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट, दैट ऑर्गेनिज्म मे बी एनिमल, that organism may be microorganism like bacteria, viruses, protozoa or etc. So morphology की definition क्या है कि living organisms के external structural characteristics को study करना. जैसे अगर आप देखें डिस्प्ले पर तो एक बर्ड की तस्वीर नज़र आ रही है. इस बर्ड के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके थाइस के बारे में पढ़ना, इसके रम्स के बारे में पढ़ना, इसके टेल फेदर्स के बारे में पढ़ना, इसके विंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी एक्सटर्नली स्टडी करेंगे. तो ये मॉर्फोलॉजी. हम इस ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी बॉडी में मौजूद यानी कि इनसाइड जो मौजूद चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे. तो ये ब्रांच मॉर्फोलॉजी कहलाएगी. सेकेंड ब्रांच एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the internal structural characteristics of plants and animals. So what is the main difference or distinguishing feature between morphology and anatomy? So in morphology we study the external structural characteristics, while in the branch of anatomy we study about the internal structural characteristics. In this picture we are not to discuss the skin, we are not to discuss about the hair or the nails, as these are the external structures. So if we study the hairs, if we study the nails, if we study the skin, so this branch is called as morphology. But if we study about the brain, throat, heart, lungs, stomach, fatty tissues, muscles, small and large intestine, liver, kidneys, lungs, arteries, veins, etc., then this branch is known as anatomy.
Coming back to our first slide and third branch, which is histology. So what is histology? The study of tissues. प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये ब्रांच हिस्टोलॉजी कहलाती है। टिश्यूज क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ये बात याद रखो कि टिश्यू कभी भी डिसिमिलर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल से मिलकर नहीं बनते, हमेशा सिमिलर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल ही आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और इन टिश्यूज की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। द पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द फील्ड ऑफ हिस्टोलॉजी इज नोन एज हिस्टोलॉजिस्ट। नाउ हैव अ लुक on the types of tissues. There are 4 different types of tissues which are present inside the human body. And these 4 types of tissues are connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue, and nervous tissue. We will discuss these 4 types of tissues in our chapter number 2, Structural Organization of Life. On the other hand, there are 3 basic types of plant tissues: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma tissues. So in short, histology is the study of plant and animal tissues. The 4th branch is cytology. What is cytology? The study of different types of cell is called as cytology. मुख्तलिफ किस्म के जो सेल है उनकी स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। अब ये बात याद रखो कि हमारी बॉडी में जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सेल्स, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स ह्यूमन अडल्ट बॉडी में मौजूद है, उनकी तादाद एक तहकीक, एक अंदाजे के मुताबिक 60 ट्रिलियन है। ये सेल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स रखते हैं, मुख्तलिफ सेल की एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हम पिक्चर में देखें तो हमें एक बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल। वीडियो क्लिप देखते हैं साइटोलॉजी को स्टडी करने के लिए। सेल्स नजर आ रहे हैं हमें। These cells are always in motion. Cell always have a cell membrane, either plant cell or animal cell. Then inside the nucleus there is a genetic makeup called DNA. There are 2 types of cell called eukaryotic cell, which has cell organelles, while the second type of cell is called prokaryotic cell, which is present in bacteria having no cellular organelles. So in this video I am showing you the 2 different types of cell, plant cell and animal cell. Both of these cells are eukaryotic in nature. Means what? Both of these cells have cellular organelles like mitochondria, like plastids in plant cell, like nucleus, Golgi bodies or Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ribosomes, vacuole, etc. सो मुख्तसरन ये कि सेल की स्टडी जो है वो साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी का दूसरा नाम सेल बायोलॉजी है। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the functions
of cell and cell organelles along with the function of organs and organ system। मतलब हमारी बॉडी में मौजूद सेल, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। अब ये फंक्शंस क्या होंगे? इस तरह से हम हार्ट देख रहे हैं, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, ब्लड का हार्ट में एंटर होना और फिर रिलीज हो जाना, ये सब क्या है? फिजियोलॉजी। इसी तरह दूसरी वीडियो में दिखा रहा हूँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी रिस्पायरेशन की, एयर का इन होना, लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, इसी तरह से एक्सेल करते वक्त लंग्स का रिलीज करना, एयर को जो इसमें मौजूद है, ये तमाम फंक्शंस फिजियोलॉजी कहलाते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स? It deals with the inheritance and the transmission of the hereditary characters. Hereditary characteristics उन characteristics को कहते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो, यानी पेरेंट से किसी फीचर का ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने की स्टडी हम जेनेटिक्स में करेंगे। वीडियो देखते हैं। ह्यूमन बॉडी जिसका जीनोम नज़र आ रहा है, ये जीनोम कंसिस्ट करता है डीएनए पर, क्रोमोसोम्स पे। डीएनए कंपोज करता है 4 तरह के अमीनो एसिड्स जो कि ए, टी, जी और सी कहलाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और यही चारों अमीनो एसिड्स मिलकर एक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यही वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें तमाम का तमाम जेनेटिक मैसेजेस स्टोर होते हैं, और यही मैसेजेस क्रोमोसोम्स के ज़रिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। याद रखो, देयर आर 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। Next branch is ecology, and ecology is also known as environmental biology. What is ecology? The study of environment. It deals with the relationship between living organisms and non-living things. Living organisms का non-living things के साथ जो relationship, जो interaction है, उसे हम study करते हैं ecology में। अब ये इंटरेक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंजाई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एल्गी भी हो सकता है, प्रोटोजोआस भी हो सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जिस तरह से हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। मतलब ये कि अगर ये चीज़ें ये एग्जिस्ट ना करें तो हमारी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होगी। दिस नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड वाटर, दिस नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड सनलाइट, दिस नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड सॉइल, these non-living things include gases like oxygen gas, carbon dioxide, etc. So the interaction of these living organisms with the non-living environment is simply termed as ecology. एक जानदार की ज़िंदगी पर नॉन लिविंग के क्या असरात हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगियों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये ब्रांच इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आवर ब्रांच इज टैक्सोनॉमी, चैप्टर 8, which is a quite different branch because it deals with the description, identification, classification and scientific naming of living organisms. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन,
कोई ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्क्राइब करना, उसको आइडेंटिफाई करना। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार डिस्कवर हुआ है, साइंटिस्ट ने उसे पहली बार देखा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसके एक्सटर्नल और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना, यह आइडेंटिफिकेशन है। फिर उसे क्लासिफाई किया जाएगा कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, आया कि वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो कोई फंजाई है, वो कोई एल्गी है, वो कोई प्रोटोजोआ है या कोई वायरस, उसका क्लासिफाई करना और फिर उसे एक साइंटिफिक नेम देना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फाइलम, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑर्डर, व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ जीनस एंड व्हाट इज़ स्पीसीज। पिक्चर में हम जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ये फॉक्स है और स्पेशली कैरेक्टराइज्ड की वजह से इसे रेड फॉक्स कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम भी मेंशन है, वोल्पिस इसे कहा जाता है, जो कि रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम है। तो हर ऑर्गेनिज्म को एक बाकायदा साइंटिफिक नेम देना, ये ब्रांच टैक्सोनॉमी कहलाती है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का एक साइंटिफिक नेम है जो कि होमो सैपियंस कहलाते हैं। इसी तरह से फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो राना टिग्रीना है। नेक्स्ट जो ब्रांच हम डिस्कस करेंगे वो है पैलियोंटोलॉजी। What is paleontology? The branch of biology in which we study about the fossils of ancient living organisms or those organisms which lived in the remote past are studied under the branch of paleontology. The branch paleontology is further classified into two branches: paleobotany, in which we study about the plant fossils, as you can see here that it is an animal, it is a plant fossil, while the paleozoology is the study of animal fossils. आसान से अल्फाज में पैलियोंटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स की फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या हो सकते हैं? ये फॉसिल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन या सेलुलर डीएनए हो सकता है। इवेंचुअली अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऑर्गन, कोई टिश्यू या कोई सेल भी मिल जाए तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं अपनी जदीद लेबॉर्ट्रीज में। तो अगर हम किसी प्लांट की स्टडी करेंगे, किसी प्लांट फॉसिल की स्टडी करते हैं तो ब्रांच कहलाती है पैलियोबॉटनी, जबकि अगर हम किसी एनिमल की स्टडी करते हैं तो ब्रांच कहलाती है पैलियोजोलॉजी। लास्ट जो ब्रांच हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल सेल्स के कॉन्जुगेट करने के बाद जो एक सेल की फॉर्मेशन हुई है वहां से लेकर टिल द जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने तक के अमल को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। So this is all about the branches of biology. Now the home task is to note all branches in your notebook, memorize all definitions, and finally you have to assess yourself. So guys, wish you all the best of luck.